Okay, so we were done with the first 6 questions. Now let's look at the seventh. And इसमें देखते हैं. So one day the garage A records the amount of petrol bought by the first 120 customers. The results are summarized in the table below. So we have these results summarized. So we have petrol here in the first row. We have the number of customers in the second row. And each of those intervals that are given. Now we have to first complete this cumulative frequency table below. Okay, so ऊपर आप देखें intervals हैं 0 to 10, 10 to 20, and so on until 70 to 80. Okay, नीचे आपको cumulative frequencies निकालने हैं. We have 9 here first for less than or equal to 10. For less than or equal to 20, we're given that's 22. So that's basically the sum of these two. 9 plus 13. तो हम क्या करना है? अगली बाकी सारे complete करने हैं. So 22 plus this 36. What do we get? We get 58 here. Okay, 58 plus this 30, that is 88. 88 plus 16, that is 104. 104 plus 9, that is 113. 113 plus 5, that's 118. And then you have 2 here, so that confirms this is 120 at the end. So we've completed this cumulative frequency curve. Now we have to just draw this curve here to represent this data. आपको सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं जो आपको नजर आ रहे हैं ऊपर x axis के ऊपर you've got the spectral on the y axis you've got cumulative frequency. तो इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं. We have 10 and 9. 10 के ऊपर we've got 9 here, so we've got 1 point here. 0 पे तो 0 होगा, so we can have that point here as well. 0 and 0. अच्छा, then 20, 22. 20, 22, that's going to be here. Scale का देखें, ध्यान रखना है. On the x axis we've got one big box representing 10 units. So छोटा box जो है वो 1 unit को represent कर रहा है. On the y axis the छोटा box है वो 2 units को represent कर रहा है. So we have to be a bit careful about that. Okay. Alicia, this is the same paper that we started yesterday. उसके आगे वाले questions कर रहे हैं. June 2016, paper 2, variant 2. Okay, so 20 and 22. Then we have 30 and 58. 30 and 58 here. Then we've got 40 and 88, 40 and 88, 50 and 104, 50 and 104, that's here. 60 and 113, 60 to 113, that's going to be somewhere here. 70, 118, that's right here, and then 80 and 120. Okay, so points plot कर दिया. All you have to do after that is you just join these points using a smooth curve. Smooth curve से आपने इसको join कर देना है. So let's try that. So okay. Make sure it's passing through every point. सर अगर थोड़ा सा मतलब टेढ़ा सा बन जाए तो उसको रब करके वो कर सकते हैं, मतलब उससे कोई मार्क्स नहीं ना कटेंगे. कोच क्या मतलब आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा मतलब पॉइंट्स थोड़ा उधर चले जाए एंड वो रब करके उसको सही कर दे तो erase तो कर ही सकते. नहीं, erase तो कर ही सकते हैं of course. इसलिए आप पेंसिल यूज करोगे हमेशा. You will not be using a pen for this because in that if you do that you will not be able to change that. आपके curve भी और points भी आपने दोनों जो है वो पेंसिल से ही करने हैं ताकि you have the opportunity to erase them and correct them. Okay, so this is what the curve will look like. ठीक है, यहाँ पर curve आ गई. Now let's look at this. You have to use a graph to estimate the median. So you've done this so many times now. This is 120. 120 is your total. 120 का half कर देंगे. 128 over 2, that's 60. 60 is not the median. 60 के साथ आप जाके देखोगे. आप जाके देखोगे x-axis के ऊपर क्या आता है. So that's this point here. That's in the middle of the box. दो boxes के दरम्यान में आ रहा है मेरे पास तो. So that's around 30.5. You can say 30.5, you can say 31.
So both are fine. For me, it's coming out to be 30.5. So I say this is 30.5 liters. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं 90th percentile of the distribution. Okay, how do you find the 90th percentile? आप देखेंगे again on the y-axis. Y-axis पे जाएंगे. Y-axis पे जाके देखते हैं total कितना था 120. 90th percentile कहाँ पे होना चाहिए? 120 into 90 over 100. And that gives us 108. 108 पे अब आपको देखना है जाके on the x-axis आपके पास value क्या आती है, right? So we go there on 108. 108 के ऊपर we are right here. ये point के ऊपर हम जाके देख लेंगे x-axis के ऊपर क्या आता है. So we have this number here. That is 54 for me. Okay, so 54 is the 90th percentile, right? So this तरह median जो होता है that's actually 50th percentile, right? तो median क्या होता है? Median 50th percentile होता है. इस तरह से आपका जो upper quartile होता है that is the 75th percentile, the lower quartile is 25th percentile. So इसी तरह से 90th percentile, you just have to calculate 90% of this number. That's 120. 120 के 90% calculate किया. उसके corresponding आप जाके देख लोगे x-axis के ऊपर what number you have. So that's 54 for me. So that's my 90th percentile. So I say this is 54. Okay, ये clear है? Is this okay Yes, to sir. everyone? Okay. अच्छा, let's move on. इसके बाद जो है हमारे पास आता है, yeah, on the same day, the other garage, that's B, also recorded the amount of petrol bought by its first 120 customers. अच्छा, ऊपर जो था, that was for the first one, that was for A. Now we've got another one, that's B. वो भी उसी तरह से 120 customers के record करता है. Now the results are summarized here. 6 customers bought 10 liters or less. क्या मतलब? आपके पास एक point आ गया यहाँ पे. 10 के corresponding, जब 10 liters या उससे नीचे नीचे होंगे, तो हमारे पास 6 point आ गया उधर. So अगर हम उस graph ऊपर table पे देखें, we can write it like this. उसी form में हम लिख सकते हैं इसको. We can say we have petrol here as the first row. Okay, and then the second row is the cumulative frequency. We have cumulative frequency here. So petrol का number जो है, when that is 10 or less, so when this is less than or equal to 10, the corresponding हमारे पास number of customers कितने आते हैं? We get 6 here. ठीक है, 10 or less जो है हमारे पास 6 आ गए. Then it says the most petrol bought by any customer was 60 liters. क्या मतलब? जो highest number होएगा 120 के ऊपर हमारे पास 60 आ रहा होएगा, right? 60 से आगे आपका ग्राफ नहीं जाएगा. So if you go on the graph there, तो मैं यहाँ पे किसी और color को use करूँ, if I were to use let's say it's red color, 60 के ऊपर 120 होना चाहिए, तो आपका ग्राफ यहाँ पे खत्म हो जाएगा, right? So this is going to be the highest point here, that is on 60. 60 पे 120 होएगा. We got 1 point here. और एक पहला point हमारे पास ये आ गया था. 10 के ऊपर 6. We can also plot that here. 10 के ऊपर we got 6. एक point ये आ गया हमारे पास. ठीक है. 0 के ऊपर तो हो गई already point. 0 पे भी वही है. अच्छा, what else? हम यहाँ पे लिख भी देते हैं. 10 के ऊपर वो आ गया. दूसरा point हमें पता चला नीचे से. That is के last जो point होएगा वो हमारे पास होगा 60 के ऊपर 120 and 60. Or in fact the other way around, right? This is less than or equal to 60 and 120. Let's go back there. Okay, so this should have been 60 here. This is 60 and this is 120. ठीक है, ये दूसरा point हमारे पास ये आ गया. अच्छा, the median amount of petrol bought was 34 liters. Median was 34. क्या मतलब हुआ इसका? टोटल कितने हैं? 120, राइट? तो 120 पे मीडियन कहाँ पर होएगा? 60th के ऊपर. सो बेसिकली जब 60 है हमारे पास इधर, तो ऊपर क्या होएगा? 34. ओके, ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया कि जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 है, दैट्स द हाफ ऑफ 120, वहां पे जो नंबर होएगा दैट्स 34. दैट्स अनदर पॉइंट दैट वी हैव. So can again go there and plot this. हम directly इसको plot भी कर सकते हो, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. But
it's just for understanding. 34 or 60, that's going to be another point for us. 60, 34 and 60, that's this point here. ये हमारे पास एक और point आ गया on the graph. ठीक है? अच्छा, let's go back there. और क्या कहते हैं? The lower quartile of the distribution was 25 liters. Okay, so again, total कितना है? 120. Lower quartile किसके ऊपर होना चाहिए? Lower quartile होना चाहिए 120 plus 25%, 25%. 120 into 1/4 भी कर सकते हैं आप, इसका 25% भी कर सकते हैं, that's 30. So that means when this is 30 here, तो आपका नंबर ऊपर क्या है पेट्रोल का? That is going to be 25. So you've got 25 here. That's another point that we've got. Similarly, it says the interquartile range. Interquartile range is 19. अब interquartile range तो आपके पास एक range आ रही है. That's not a point that you have. आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको use करके upper quartile find करना पड़ेगा. How can we do that? You can say interquartile range is equal to the upper quartile minus the lower quartile. ठीक है? यहाँ से हमारे पास आ गया 19 is equal to the upper quartile minus the lower quartile, that's 25. तो upper quartile हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 25 plus 19, which is 44. ओके, ये हमारे पास upper quartile आ गया. इसका मतलब क्या हुआ? तो हम इसको यहाँ पे करेंगे 120 का 75% और 120 3/4, that gives us 90. तो जब 90 यहाँ पे होगा, corresponding हमारे पास वैल्यू ऊपर क्या आ रही होगी? That will be 44. हम ये पॉइंट से प्लॉट कर देते हैं वहां पे. We've got 25 and 30. Let's start this one. 25 के ऊपर 30. That's this point here. And then we have 44 and 90. So 44 on the x-axis, 90 on the y-axis. That's this point here. ये हमने 5 points plot कर दिए. Okay, so this is all the information that we have. And then it says, draw the cumulative frequency curve for this garage, that's B, on the grid on the previous page. आपने ये plot कर देना है वहाँ पे. We've already plotted the points. आपने वो सब graph draw कर देना है. Okay, so that's the next thing that we do here. We draw this graph. Okay, just confirming one thing. 104 कहाँ से आ रहा है वाला वो? और पॉइंट भी वहाँ पे मार्क किया हुआ मैंने. 50 के ऊपर 104. Where was that coming from? Is that anywhere here? Median is this. 6 is this. मेरे ख्याल में पिछले किसी पार्ट में आ रहा है. 54. So that's not here. अच्छा. Okay. अच्छा, I guess so. मेरे ख्याल में point 4 वहाँ पे गलती से मार्क हुआ है. That's not a point that we have to pass through. Let's erase that. ये जो orange point मुझे दरमियान में नजर आ रहा था. I'm just thinking ये कहाँ से आ रहा है. Okay. So let's get rid of that. Okay. अब आपको सिर्फ क्या करना है? ये plot कर देना है. जिस तरह हमने पहले किया था. So you draw this curve through these points. अभी उतनी accurate तो नहीं होगी, but you get the idea. Shape तो उसी तरह होती है cumulative frequency curves की. आपने उसी तरह से तकरीबन एक shape बना देनी है that passes through the points that are given. Okay, so it may take a few attempts to get right. यहाँ पे मेरे पास digital में और थोड़ा सा मसला होता है. Try and make it work. Okay, so this is what it looks like. ठीक है, इस तरह की आपकी cumulative frequency curve बन जाएगी. This is for the garage B, and the earlier one was for A. Okay, any questions on this? So ये वाला part थोड़ा सा मुश्किल होता है when you have information given like this. आपको convert करना पड़ता है उसको पहले इस तरह से points में. When you're done with that, उसके बाद फिर आप उसको plot कर सकते हैं. So any issues with this part? Any questions on this? No, sir. You clear it? Okay. Yes, sir. अच्छा. Now, petrol is priced at $2.6 per liter at both garages. Now, A offers a gift to customers who buy over 35 liters, and B offers a gift to customers who spend over
$104। अच्छा, दोनों जो है कुछ गिफ्ट ऑफर करते हैं और दोनों के ऊपर जो है जो प्राइस है that is $2.6 per liter. Now we have to use our graphs to estimate the number of these customers that are offered a gift at each garage and complete the sentence below. Okay, so we have the sentence here. Garage this offers a gift to this many more customers than the other garage. Okay. अच्छा, so हमने graphs use करने हैं to estimate the number of these customers who are offered a gift at each of those garages और हमें ये sentence complete करना है. अच्छा, so ये वो तो हम कर लेंगे. Let's complete this. Let's do this thing first. कितने लोगों को gift मिलता है? That's the point here, right? The number of the customers who are offered the gift. अच्छा, A पे कब मिलता है? It's offered to all the customers who buy over 35 liters. 35 liters से ज़्यादा जिन्होंने भी किया, all of them get a gift. Let's go on our graph. 35 liters से ज़्यादा. So 35 liters पे कौन सा point आता है? That point is right here. 35 liters. That's so we're talking about the part A right now. A or B? Let's check. We're talking about A right now. A कौन सा है? That's the green one. So green वाले graph के ऊपर we have this point here. See, y-axis के ऊपर we get this number that is 76. अच्छा, अब इससे ज़्यादा की बात हो रही है, right? More than 35. We're talking about more than 35 liters, over 35 liters, right? So x-axis के ऊपर से क्या मतलब है? You have to be towards the right of this 35. 35 के right side पे, और on the y-axis what that means is 76 के ऊपर. Okay? So how many customers is that going to be? That's going to be 120. That was the total. We subtract from that 76 and we get 44 from that. So A के लिए the number of customers who get a gift in garage A, that is 44. So we get 44 here. Now for B, we are given that they offer a gift to customers who spend over $104. अच्छा, अब $104 से ज़्यादा spend करें. अब यहाँ पे ग्राफ पे तो हमारे पास कहीं पे भी amounts नहीं है, as in dollar amounts नहीं है. We only have petrol, that's in liters, and we have the number of customers. राइट तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा उन अमाउंट्स को पेट्रोल में उस डॉलर अमाउंट को हमें लिटर्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है तो क्या मतलब we have this $104 and the price per liter is $2.6 तो कितने लीटर हो गया फिर $104 के अंदर हम देखते हैं 104 divided by 2.6 that gives us 104 divided by 2.6, that's basically 40. So that gives you 40 liters. यानी कि ये जो लिमिट है $104 की, this corresponds to 40 liters. यानी कि गैरेज बी में कब आपको गिफ्ट मिलता है? When you spend over 40 liters. Right? आपको ये अमाउंट दी हुई थी 104, आपने उसको डिवाइड कर दिया 2.6 के साथ, so you get this number here. Okay, so now this is what you have to deal with. So let's go back on the graph here. 40 liters से ऊपर देखते हैं for garage B. So let's have a look at that. So we have that here. That's 40. 40 के ऊपर जाके देखते हैं. That point is going to be somewhere here. तकरीबन ये point आ रहा है. ठीक है. The y-axis के ऊपर this is 80. ठीक है यहाँ पे जाके हमने देखा y-axis के ऊपर that point is coming out to be 80. अब again 80 से ज्यादा की बात हो रही है because 40 से ज्यादा की बात हो रही थी इधर right x-axis के ऊपर 40 से right side पे तो y-axis पे वो क्या आएगा it's going to be greater than this number 80. 80 से ऊपर कितना क्या हो जाएगा फिर it's going to be 120 minus 80 120 minus 80 and that gives us 40. ठीक है तो A पे क्या होता है there are 44 customers who are given a gift and on B there are 40 customers who are given a gift right so हम इस sentence को complete कर सकते हैं
ज्यादा कौन दे रहा है? A. So garage A offers a gift to how many more customers? 4 more customers because उसके 44 हैं, इसके 40 हैं. Then the other garage, that's garage B. Okay, so that's what you do here. Is this okay to everyone? Yes sir. Sir हमने 120 minus 76 क्यों नहीं किया? 180 क्यों किया? Oh, 120 minus 80 क्यों किया? 76 क्यों नहीं किया? B के लिए तो हमारे पास 80 आ रहे हैं ना. B के लिए तो 80 आ रहे हैं. वो A के लिए था 76. 76 was for this green graph. So B के लिए 76 नहीं आ रहा. ये B है. B के लिए हम 40 पे देख रहे हैं, greater than 40. So that's this point here. और इसको हमारे पास ये 80 आ रहा है उसके corresponding. अच्छा, वो शायद कलर्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं. मैं कलर चेंज कर देता सर हूँ यहाँ पे. मेरी लाइन वहां से पास कर रही है ना. 76 आपकी से लाइन वहां से 40. 40 पे 76 से पास कर रही है. ये ये तो तो नहीं हो सकता. 76 से 76 पास नहीं कर बल्कि नहीं ये सकता. 77 से लेके 78 तक होगा ये. 77 तक 76 से तो होगा. नहीं कर सकती. 76 से तो पास नहीं कर सकती. लेकिन है 80 के करीब ही है. कोई एक 1.5 बॉक्स का बीच में डिस्टेंस होगा उससे 80 से. ओके, सो दैट्स 77 देन. सो 77 फिर आप अपने केस के अंदर आप अपने लिए क्या करोगे? आप कहोगे 120 minus 77 and that will give you 43 there. तो इसका आपके पास 43 आ जाएगा. इसकी जगह 43 आ जाएगा. So that's fine. You just look at your graph. उसके हिसाब से फिर आप अपना रिजल्ट दो. Let me just check the marking scheme. A के लिए the acceptable range is from 44 to 48. A के लिए. B के लिए the acceptable range is 38 to 44. Okay. So आपके इनके दरमियान में आंसर्स आ रहे हैं. That is okay. All right. यस सर. फिर उसके हिसाब से फिर आप ये सेंटेंस कंप्लीट करोगे. It should correspond to what you've written there. Is this okay? यस सर. ओके. All right. Let's move on. Let's look at question number 8 here. Achha. Now the table below shows some values of x and the corresponding values of y for this graph. That's 1 over 4 into 2 raised to the power x. Now it's an exponential graph. ठीक है. So ये graphs हम यहाँ पे plot करने हैं. उससे पहले we have to complete the table. So आप x की जगह 1 input करते हैं. Right? So that's the value that's missing. When you put x equal to 1, you get 1 over 4 into 2 raised to the power 1. That's basically 1 over 2. Okay, हमने value input कर दी, आपने directly उसको निकाल लिया. Now on the grid below, we have to draw the graph of this function. Okay, now we have those values given. उसने scale already वहाँ पे बनाया हुआ है, so there isn't really much work to do. आपने सिर्फ वो points plot करने हैं. 0 पे 1 over 4. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर आप fractions को convert कर लो decimals के अंदर. 1 over 4 is the same thing as saying 0.25 and 1 over 2 is the same thing as saying 0.5. Okay. Achha, 0 pe you've got 0.25. That is going to be here. Achha, then 1 pe it's 1 over 2. That's right here. 2 pe 1. That's this point. We have 3, 2, and 4, 4. 3, 2, and 4, 4. And then you have 5 and 8. So that is right here. ठीक है, ये points plot कर दिए. I just have to join them and make a smooth curve. So what I'm going to do for that is I'm just going to make my graph a bit smaller so that it's a bit easier. पहले एक figure में नहीं आ रहा था. Okay, so now I can see all of that. So let's draw this. हम draw कर देते हैं अब. It will look something like this.
Okay, so the graph will look something like this. Now, थोड़ा सा यहाँ पे इसको curvature ठीक कर दो. Okay, and I need to just correct this a bit as well. लेकिन इसलिए आप पेंसिल से करेंगे तो बेहतर होएगा ताकि आप उसको erase करके कुछ आपने थोड़ा सा improve करना, you can do that, right? So you should try to make it as smooth as you can ताकि आपकी values बाद में accurate आए. Okay, so this is what I'm getting. So I'm going to go increase the size again. So yeah, so that's the graph. Okay, basic was thoda sa kar raha hai. That's okay for us now. Okay. Now, next it says, by drawing a suitable line, find the gradient of a graph when x is equal to 4. So again, it's a very standard question. X equal 4 के ऊपर आपको वो tangent बनाना है और आपने gradient find करना है. Okay, so हम यहाँ पे tangent बना देते हैं. X equals 4 के ऊपर, that's this point here. ये वाला point. इसके ऊपर tangent बनाना है. So again, as I told you before, आपने क्या करना है? ऐसी line बनानी है जिसकी डायरेक्शन जो है वो कर्व की डायरेक्शन की तरह हो उस पॉइंट के आसपास, ठीक है. और इसको जज करने का तरीका क्या होगा? फिर दोनों साइड्स के ऊपर कर्व से गैप जो है तकरीबन एक जितना हो. फॉर एग्जांपल, if I were to draw this tangent, this is a good tangent. It's not very good because ऊपर बहुत ज्यादा गैप है, नीचे गैप नहीं है इतना, right? So I'll change the direction a bit. I'll make it a bit more steeper. दोनों तरफ डायरेक्शंस थोड़ी सी एक जितनी आ रही हो. So तो उसको लंबा कर देना है ताकि हम पॉइंट्स ले सकें सही. So this looks a bit more reasonable as compared to before. So एक तो कर्व को सिर्फ उसी पॉइंट पे टच करना चाहिए और उसकी डायरेक्शन तकरीबन इस तरह होनी चाहिए कि दोनों साइड्स पे गैप जो है वो almost similar हो. Okay, so that's my tangent here. So what I'll do now, I will just take 2 points on this. Any 2 points that you like. So let's say I take this point here on the lower side. So that's 3.1 and 1.3. I've got 1 point here and another point here on the other side. Let's say I take this point here, which is 5 and 6.9. ठीक है, 2 points आगे आपको सिर्फ क्या करना है? इन points को use करके gradient find कर लेना है. So let's call any one of these points as x2 and y2. Let's call these x1 and y1. So gradient क्या हो जाएगा? It will be y2 minus y1. So that's 6.9 minus 1.3. 6.9 minus 1.3 divided by x2 minus x1. So that's 5 minus 3.1. 5 minus 3.1. And that will give you some result. यहाँ पे देख लेते हैं क्या आता है. यहाँ 6.9 minus 1.3 divided by 1.9, and that turns out to be 2.95 for me. So the gradient turns out to be 2.95. आपने देखना है कि आपके पास क्या आता है, आपके ग्राफ पे क्या आता है, ठीक है. आपने उससे देखना है, because it can be different for everyone. Okay, आपने अपने ग्राफ से देखना है. So range for this is, so mine is barely in the range. The range is 2.3 to 3.0. इसके दरम्यान में कहीं भी हो, that is acceptable. Okay. इसके बाद वो क्या कहता है? Show that the line 2x plus y equals 6 together with the graph of this can be used to solve this equation. Okay. Now again, हम क्या करते थे? दो graphs का solution, दो equations का solution क्या होता है? जब वो ग्राफ एक दूसरे को intersect करते हैं आपस में, right? Intersect करते हैं आपस में. तो intersect कब करते हैं? जब intersect करते हैं दो graphs, उन points के ऊपर वो equal होते हैं एक दूसरे के साथ, right? जिन points पे intersect करते हैं, उन points पे वो graphs एक दूसरे के equal होते हैं. So all you have to do here is you make the subject in both equations the same. जिस आप simultaneous equation solve करते हैं ना, तो आप यहाँ पे समझें कि we can only use substitution here. Substitution के अलावा कुछ use नहीं कर सकते. और substitution कैसे use होगी? We have y equals this here.
y equals 1/4 into 2 raised to power x. दूसरे में से भी आप क्या करेंगे, इसी को सब्जेक्ट बना लेंगे, y को सब्जेक्ट बना लेंगे, y equals 6 minus 2x. Once you have y equal in both of them, y the subject in both of them, you just equate both of them, right? दोनों को equate कर दें, you get 6 minus 2x equals 1/4 into 2 raised to power x. Now you just have to simplify this. 4 को multiply कर दें पूरी equation के साथ, we get 24 minus 8x equals 2 raised to power x. Let's take everything to one side, and that will give you 2 raised to power x plus 8x minus 24 equal to 0. ठीक है, आपने करना सिर्फ क्या था, इन दोनों equations को equate करना है, right? Because इन दोनों equations को जब equate करेंगे, आपको इनके points of intersection मिलेंगे. Okay, so that's where we get this from. अच्छा, उसके बाद वो कहता है hence solve this thing. Using this concept, we have to solve this equation. अब ये तो exponential equation है, हम इसको algebraically तो वैसे भी solve नहीं कर सकते, लेकिन इसमें hence लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें वही उसने जो idea दिया है ऊपर, उसी को use करना है. Now, what can we do? अब इसमें देखिए उसको आपको direct नहीं बताया क्या करना है, अब खुद सोचना है कि अच्छा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा. So, what do we do here? Any idea? Any idea, anyone? How do we solve this equation now? इसको अगर प्लॉट करके, इसको प्लॉट करेंगे. अगर सर इसका भी ग्राफ बना लें, लेकिन सर बाद में एक्स वैल्यूज क्या आएंगे? Yes, very good. So देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों equations को में से y को सब्जेक्ट बना रहे हैं, उनको equate कर रहे हैं. ग्राफिकली क्या मतलब होता है इन दोनों को equate करने का, simultaneously को solve करने का क्या मतलब होता है? All it means is that you're looking for, that you're finding the points of intersection of those graphs. तो हम वो कर रहे हैं, इनके points of intersection find करने हैं हमें. ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ग्राफ तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ये ग्राफ तो ऑलरेडी है. This is the other straight line that we are dealing with. ठीक है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको इसके दो पॉइंट्स ले लें कोई भी इसके ऊपर. We have y equals 6 minus 2x. So let's take any 2 points such that they are, you know, in the range that is given in the graph. So x जो है वो 0 और 5 के दरम्यान में होना चाहिए, y जो है वो 0 और 7 के 0 और 8 के दरम्यान में होना चाहिए. So let's try something. Let's say x की value 0 input करें, तो y क्या आता है, we get 6. Okay, let's take another value of x. x की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3 लेते हैं तो हमारे पास y आ जाता है 0, right? So any 2 points that are there on the graph, बहुत करीब नहीं लेने, थोड़े से डिस्टेंस पे लेने हैं पॉइंट्स. ठीक है, अदरवाइज अगर आप करीब लोगे ना उससे एक्यूरेसी का थोड़ा सा मसला आता है, थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर. So let's say we have these points 0 and 6. ये एक पॉइंट आ गया, you go on the graph and plot that 0 and 6, that's going to be here, that's one point. And then we have 3 and 0, that's right here. Okay, इसको यूज करके हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह से. So let's draw that straight line. That will look something like this. ठीक है, it should be sharper than this. ताकि आपकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा accurate हो. I can make it a bit sharp here somehow. Yeah. So this is your straight line. ये straight line बन गई. उसके बाद आपको simply क्या करना है, we look at the point of intersection here. So that's the point of intersection. आपको हमेशा यहाँ पे x की वैल्यू ही पूछ रहा होगा वो. यहाँ पे x की वैल्यू देखें मेरे पास क्या आती है. So I'm getting something around 2.35 here. Right, 2.3 और 2.4 के दरम्यान में है. So that is my solution to this equation. ये मेरे पास point of intersection है दोनों graphs का. So मेरे पास जो red वाली curve थी, what was that representing? That was y equal to 1/4 into 2 raised to power x. The other graph that I have there, that represents y equals 6 minus 2x. तो ये जो point of intersection है, इसके ऊपर ये दोनों equal है, right? So वो जो equation हमने मेरे पास बनी थी, वो इन दोनों को equate करके आई थी. So this point of intersection is basically going to be the solution to that equation. So what do we get? We get 2.35 here. So we say x is equal to 2.35 here.
Is that okay? ये clear है सबको? Yes sir. Okay, अब यहाँ पे लाइन बनानी जरूरी होगी, उसके बगैर आपको मार्क नहीं मिलेगा, because it says hence solve this. अगर आप वैसे किसी तरह से आंसर लिख दोगे, you will not get this mark. Okay? अच्छा, points P and Q are 2, 3 and 5, 4 respectively. Find the gradient of PQ. ये बहुत ही उसने दरम्यान में एक आसान सा क्वेश्चन दे दिया. So let's find the gradient. What do we do? We say 4 minus 3 divided by 5 minus 2. That's going to be 1/3. Okay, so that's 1/3. अच्छा, on the grid, draw the line L. एक और line है, that's the line L. That is parallel to PQ. PQ के पैरेलल क्या मतलब, उसका ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? उसका ग्रेडियंट होना चाहिए 1/3. ओके, पैरेलल है PQ के. That touches the curve y equals 1/4 into 2 raised to power x. अच्छा, 1/3 ग्रेडियंट की एक लाइन बनानी है तो सिर्फ इसको टच करे, इस ग्राफ को टच करे. टच करने का मतलब है टेंजेंट हो उस ग्राफ के, उस कर्व के टेंजेंट हो. मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ उसको टच करनी चाहिए. ठीक है, एक पॉइंट पे टच करे और ग्रेडियंट हो 1/3. हाउ डू वी डू दिस? क्या करें? एनी आइडिया अबाउट दिस? सर इसको छोड़ दो. इसको छोड़ दें. हाँ. सर लेकिन वो इसको क्या सबसे कह रहे हैं? पहले मैं बताऊं सर, सही में सही लाइन की हुआ है. इक्वेशन निकालें. क्या हमारे करें? पास 2 पॉइंट्स हैं. तो पॉइंट्स हमारे पास हैं ना P and Q के, ठीक है सर. हम वो लिखते हैं नहीं इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स लाइन, वो नहीं है. नहीं. देखिए, लाइन L इज पैरेलल टू PQ. इट्स नॉट PQ. ये कोई PQ का पैरेलल लाइन है. अच्छा ये PQ नहीं है. हाँ. PQ नहीं है. लाइन एल हमें नहीं पता ना. लाइन एल नहीं हमें नहीं पता, पता ना. नहीं पता ना, नहीं पता हमें. तो तो वो अब पैरेलल इन्होंने है. कहा कि ये पैरेलल है तो इनका ग्रेडियंट सेम होगा. यस, दैट्स ट्रू. ग्रेडियंट सेम हो गए. सर कोऑर्डिनेट्स नहीं ना ठीक पता. है. अच्छा, सो आपने क्या करना है, आपने कोई भी ऐसी लाइन बना देनी है जो इसका ग्रेडियंट 1/3 हो. कोई भी एक ऐसी लाइन बना दे जिसका ग्रेडियंट 1/3 हो. द इजीएस्ट वे टू डू दैट वुड बी आपके P की लाइन ड्रॉ कर दें वहां पे. राइट, लेट्स डू दैट. 2, 3 पॉइंट मेरे पास, एक पॉइंट ये आ गया और 5, 4 मेरे पास आ गया ये पॉइंट. अच्छा, आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ गए. ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1/3 से ग्रेडियंट कैसे बन रहा है. इसका ग्रेडियंट 1/3 ऐसे बन रहा है कि y एक्सिस पे कितना मूव कर रहे हैं, 1 यूनिट. x एक्सिस पे कितना मूव कर रहे हैं, 3 यूनिट्स, है ना. x एक्सिस मूवमेंट कितनी है, 3 यूनिट्स ना. यहाँ से लेकर यहाँ तक it's 3 units on the x axis. तो ग्रेडियंट का कितना बन रहा है, 1/3 ग्रेडियंट है. ठीक है, 1/3 आपका ग्रेडियंट आ रहा है. अच्छा, अब आपने करना क्या है, अपने अपने रूलर को प्लेस करना है इसके ऊपर. सो लेट मी शो हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक. अपना रूलर इस तरह से प्लेस करोगे इसके ऊपर. हाउ डू आई ड्रॉ दैट? और सर लाइन बना दे. लाइन बनानी नहीं है, आपने बस रूलर रखना है इस डायरेक्शन के अंदर. इस डायरेक्शन के अंदर रूलर प्लेस करना है. सर रख दिया. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ. So let's say this is your ruler. How to draw that again? आपने रूलर इस डायरेक्शन के अंदर प्लेस कर दिया. ठीक, अच्छा, ये समझे आपका ये रूलर पड़ा हुआ है इस पर. ठीक है, ये हो गया. अब आपने क्या करना है, अपने इस रूलर को मूव करना है नीचे की तरफ such that इसकी जो डायरेक्शन है रूलर की वो चेंज नहीं होता था. राइट, आप इसको ये समझ लें, उसी तरह की लाइन नीचे बनाते हैं. एक ये लाइन बना दें. कितनी नीचे बनाए? हमें कर्व को टच करना है ना, दरम्यान में तो कहीं भी करेंगे, यहाँ पे कहीं बनाएंगे, इधर कहीं बनाएंगे, वो तो इंटरसेक्ट कर रही है. ये सारी लाइंस तो इंटरसेक्ट कर रही है. हम नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे such that we are only touching the graph at one point. अच्छा, फॉर एग्जांपल एक लाइन में नीचे यहाँ पे बना देता हूँ. That's parallel to that. मैं 0 से स्टार्ट किया और मैंने 3 पे एंड किया. This is one possible line. That's parallel to that. ये parallel है ना उसके, है ना. 3 units
एक्स एक्सिस के तो ऊपर जैसे टेंजेंट बनी होती है उसी तरह एक बनाते हैं जो कर्व के साथ टच भी हो रही है और ऐसे आगे जा रही है। यस तो ये आपके पास ये एक पॉसिबल लाइन आ गई। इस डायरेक्शन के अंदर आपको एक ऐसी लाइन चाहिए जो सिर्फ कर्व को टच कर रही हो, सिर्फ कर्व को टच कर रही हो। अब इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर दें, बस इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देंगे, आपके पास वो टेंजेंट आ जाएगा। सो इफ आई वर टू मूव दिस स्लाइटली अपवर्ड्स, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर मूव करूंगा, मेरे पास कुछ इस तरह की लाइन आएगी। आपने बेसिकली रूलर उस डायरेक्शन में रख के ना उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है इस तरह से, तो एक ऐसी लाइन आपको मिल जाए जो कर्व को बिल्कुल टच कर रही हो। ठीक है, सो आई विल ड्रॉ दैट हियर, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सर अगर पॉइंट्स वो सेम रखे ना, जैसे कि यहाँ पे बन रहा था एक बॉक्स ऊपर है और 3 बॉक्स आगे हैं, अगर इसको ही ऐसे नीचे लेते जाए ना सर तो थोड़ा सा गैप आता है, टच नहीं होती, गैप है उसमें फिर ठीक ये है, इसको रखें। नीचे लेके जाएं। सर रूलर को जब नीचे लेके जाना फिर गैप है उसके अंदर, नहीं, अगर थोड़ा सा ऊपर उन्हीं कर लें, फिर गैप खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लें, गैप खत्म हो जाएगा। कोई पॉइंट आएगा ना यहाँ पे सिर्फ टच कर रही होगी, ठीक सर। राइट। सो ये मेरे पास ये लाइन आ गई जो इसकी डायरेक्शन वही है जो उसने कहा हुआ था, और ये सिर्फ टच कर रही है मेरी कर्व को। ठीक है, does this make sense? इससे ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पता है कि आपको लिखनी है इक्वेशन उस लाइन की। आपको पता है ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट तो 1/3 है, so it's going to be 1/3x then plus something plus the y intercept। अब यहाँ पे देख लो अप्रोक्सीमेटली आपका y intercept क्या बन रहा है, मेरा बन रहा है 0.15, 0.15 मेरा बन रहा है 0.15। अब अपने ग्राफ पे देख लेंगे क्या बन रहा है, I am जीरो getting पॉइंट वन फाइव 0.15 here। बन रहा ठीक है, so that's y equals 1/3x plus 0.15, that's the equation of my line। ओके अब यहाँ पे एरर का उसने दिया हुआ है, इफ आई लुक एट द मार्किंग स्कीम, उसने एरर का दिया हुआ है कि ये हो सकता है क्या। सो y इंटरसेप्ट आपका, ये जो y इंटरसेप्ट आपने लिखा है नीचे, ये 0 से लेकर 0.25 के दरम्यान में कहीं पे हो सकता है, एंड दैट्स फाइन। ओके, दैट इज द इक्वेशन ऑफ योर लाइन। सर इस तरह क्वेश्चन फर्स्ट टाइम किया। Yeah, so I have also not seen many like this before. So yes, it was an interesting question, and I hope this is clear। इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो आपने बेसिकली उस डायरेक्शन के अंदर एक लाइन बनानी है दैट जस्ट टचेस द ग्राफ, उस डायरेक्शन के अंदर। तो आपने रूलर अपना उस डायरेक्शन के अंदर प्लेस कर देना है, उसको फिर मूव करना है ऊपर नीचे कि वो सिर्फ कर्व को टच कर रहा हो। सर लाइक हमने बस वो जो पी क्यू वाले जो कोऑर्डिनेट्स है हमने उसकी लाइन बना दी। ठीक है, तो क्योंकि पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट सेम होता है, हमने वो वाले कोऑर्डिनेट यूज करके हमने उसकी लाइन बना दी, एंड हमने उसको थोड़ा मतलब रूलर से ऊपर नीचे किया ताकि वो टेंजेंट टाइप बन जाए, और टेंजेंट बन जाए, फिर हम उसे एग्जैक्टली टेंजेंट बनाना है उसी डायरेक्शन का, राइट। तो दैट्स द आइडिया, उसी डायरेक्शन का हमने टेंजेंट बनाया था। सो दैट्स व्हाट वी गेट हियर। ठीक है, ठीक है सर। is this clear to everyone? Any issues with this? Any problems? Okay, let's move on. Acha. The diagram shows a vertical wind turbine with blades 30 meters long. Okay, good. So the diagram shows a vertical wind turbine with blades 30 meters long. Yeah, because wind turbine has the blades and they are 30 meters long. Okay. Now the blades are stationary, with the point A being the maximum distance possible from the horizontal ground. अच्छा, so the blades are stationary. Okay, so A इसी position के अंदर stationary है, जो आपको नजर आ रही है position. Now the point B is such that the angle of elevation of A from B is 34 degrees. Okay, so आपको एक angle दिया हुआ है, angle of elevation of A from B, the B angle बन रहा है ये वाला angle, this whole angle, this is given to be 34 degrees.
Okay, so that's what's given. Now it says the angle of elevation of the center of the blades C, that's this point here, from B is 25. So this angle here is 25 degrees. ये दो angles आपको दिया हमने. Okay, so the normal angle आपको चाहिए होता, that would be 9 degrees. ठीक है, ये information दिया. Now calculate the distance AB. Okay, AB find करना है आपको distance. How can we do that? Distance सर AB. हमारे पास जो ये जो पोल है, विंड पोल है सर, ये ग्राउंड से लेके 30 है कि सिर्फ AC 30 है? नहीं, सिर्फ AC 30 ना, आपको फिगर में नजर भी आ रहा है वो, सिर्फ AC तो 30. इसमें क्यों कैसे डायग्राम शोज अ विंड टरबाइन विद ब्लेड्स 30 मीटर लॉन्ग, तो विंड टरबाइन तो पूरी नहीं होगी? नहीं, नीचे तो आपका वो पोल है ना, पोल के ऊपर ऊपर टरबाइन लगी हुई है ना, पूरी तरह टरबाइन होती है ग्राउंड से, पोल होता है उसके ऊपर, फिर वो फैन टाइप नजर आ रहा होता है टरबाइन आपको, ये ब्लेड्स एंड ठीक टरबाइन, सर, राइट. अच्छा, ठीक सर. अब उसने क्या कहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी, ए से बी का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. यहाँ पे डिस्टेंसेस कौन से दिए हुए हैं, वो 30 मीटर्स वो लेंथ दी हुई है. एंड डू वी हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन? we don't really have any other information. अच्छा, so let's figure this distance out. और बस क्या क्या information है इस diagram के अंदर, let's figure that out. So we know that this angle is 9 degrees. ये angle 9 degrees है. अच्छा, ये तो हमें पता है. What other information can we figure out from here? We know that this angle is 90. ये angle 90 होएगा. ठीक है, ये एंगल 90 है. अगर ये 90 है तो हमें वो एंगल पता है, ये पूरी लेंथ नहीं पता, so we can't do much about that. But what we can do is we can, so we can use this triangle. So we're using the triangle ABC. Triangle ABC. जो छोटी triangle नजर आ रही है ना, that's what we're using here. ये वाली triangle देख रहे हैं, ठीक है. इसमें क्या है, एक एंगल ये है आपको, one angle is 9 degrees, हमने फिगर आउट कर लिया अभी. If this was 90 and this whole angle was 34, that gives you this angle at the top as well. ये बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है ना, ये बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर ऊपर वाला एंगल आ रहा है वो, तो टोटल 180 होता है. 90 माइनस किया, ये 34 माइनस किया, ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा. वो क्या आता है, that will be 56 degrees. Is this clear? 180 minus 90 Yes sir. minus 34, we get this angle at the top. अब ऊपर वाला एंगल आ गया, अभी नीचे वाला एंगल बाकी कितना बचा ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर, ये एंगल. What will this be? 180 में से 56 माइनस किया और ये 9 माइनस किया, what are you left with? 115 degrees. ठीक है, ये हमारे पास ये ट्रायंगल आ गया. So now we can use the sine rule. We know this side is 30. 30 के opposite angle is 9. Okay, so we have one pair here. हमें AB find करना है. So AB के opposite angle कौन सा है? This 115. So AB over sine of 115 is equal to 30 over sine of 9 degrees. ठीक है, यहां से क्या आएगा, यहां से हमारे पास AB की लेंथ आ जाएगी. ठीक है, तो just say 30 into sine of 115 divided by sine of 9, and that gives us 173.8 degrees. 173.8 meters. 173.8 meters. That is the length AB. Okay. Acha. Now it says a different wind turbine shown in the diagram on the next page. So we have this next page. इसमें कोई और wind turbine, it's not the same one. Has the center of its blades F 75 meters from the base of the turbine. अच्छा, अब इसका जो center है F, इसका D से distance is 75. That's what we're given. Now point E is on sloping ground. तो ये slope है और ये point E आपको नजर आ रहा है यहाँ पे. Distances आपको दिए हुए हैं. Calculate the angle of depression of E from F. अच्छा,
फ्रॉम एफ लिखा हुआ है, एंगल कहाँ में बनेगा, एंगल एफ पे बनेगा, ठीक है, एंगल बनेगा एफ के ऊपर। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, एफ से हमने देखना है ई को, एफ से हमने ई को देखना है। लाइन ऑफ साइट क्या है हमारा, हम सीधे एफ के ऊपर खड़े होंगे, हम इस तरह सीधा देख रहे होंगे, कितना नीचे देखना पड़ेगा ई को देखने के लिए, that's this angle here, this is what we are looking for, ये एंगल चाहिए हमें, okay? This is what we are being asked about. How can you find this angle? Let's see what information we have for this. We know that this is 75, okay? We have all the lengths in this triangle, ये 180 है, ये 130 है, आप क्या कर सकते हो, you can just figure out this angle here, जो अंदर वाला angle ये figure out कर लो, ठीक है? Let's find this angle in the middle. How do we find this? We say we can see use cosine rule because pair तो नहीं है कोई, sine rule तो नहीं लगेगा, we can use cosine rule. We know that we have to find this angle, इसके opposite side क्या है, this is 130, ये side आप use करोगे, so we just apply the cosine rule. We say a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos of a. अच्छा, तो इस एंगल की ऑपोजिट साइड क्या है, 130, 130 हमारा आएगा लेफ्ट साइड के ऊपर, 130 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 180 का स्क्वायर एंड 75 का स्क्वायर minus 2 into 180 into 75 into cos of that theta, ठीक है, यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाए, so let's evaluate that. That will be 180 square plus 75 square minus 130 square divided by 2 into 180 into 75. Okay, you get some value of cos theta from here. So let me just evaluate that. 180 square plus 75 square minus 130 square divided by 2 and 180 and 75. This is 0.784, ठीक है, इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 38.5 degrees. This is the value of this theta. Theta आ गया, अब angle of depression कितना बना फिर, the angle of depression therefore is equal to 90 minus 38.5, which is 51.5 degrees. That's the angle of depression. अच्छा, हमने ये देखा हुआ है पहले, आपके पास ये पॉइंट A है let's say और ये पॉइंट B है, आप लोगों ने शायद इस तरह पढ़ा हुआ है कि अगर आप B से ऊपर देखोगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, A से नीचे देखोगे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये एंगल सेम होते हैं। यस सर, तब ये एंगल सिर्फ तब सेम होते हैं अगर ये पैरेलल सर्फेसेस हैं, यहाँ पे एंगल सेम नहीं होंगे, यू कैन नॉट फाइंड दिस एंगल एंड से कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला सर्फेस स्लोपिंग सर्फेस है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दे आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल, they are not equal in this case because नीचे वाला surface is not horizontal, it's a sloping surface, यहाँ पे वो चीज apply नहीं होगी। Is that point clear? Yes sir, समझ आ। अब ये वाला एंगल ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला एंगल नहीं होगा, just be careful about that. अच्छा, let's move on. P is the point on a blade which is furthest from the center of the blades. Each blade is 30 meter long. Okay, so यहाँ पे भी blades कितने meters long है? 30 meters long. P is a point on a blade which is furthest from the center of the blades. अच्छा, P जो है वो let's say यहाँ पे this point is let's say P. ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है. So center से जो सबसे furthest point है उसको P का है, यानी जो टिप है आपकी ब्लेड की that's P. अच्छा, so given that, calculate the distance traveled by P as the blade completes one revolution. Okay, देखिए P कहाँ पर है? P is this tip here. ये tip जो है ना that is P. ये revolution complete करता है,
ब्लेड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है. व्हाट दैट मींस इज ये जो P पॉइंट है इट्स गोना मूव इन अ सर्कल लाइक दिस, राइट. P कहां पे इस तरह मूव करेगा, टरबाइन इस तरह मूव करेगा लाइक अ फैन, मूव लाइक दिस, ये पूरा घूम के वापस यहाँ पे ऊपर आ जाएगा. सो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, ये सर्कल हमने यहाँ पे बनाया है इसका जो सर्कमफेरेंस है इतना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया. अब इसका रेडियस कितना है इस सर्कल का, दैट्स 30 इज द रेडियस. आपको ये सर्कमफेरेंस फाइंड करना है because that will be the distance that this point P travels when this blade completes one revolution, right? So all you have to do here is you just say it's 2 pi r, which is 2 pi into 30 or 60 pi. ठीक है, इसको 60 pi भी लिख सकते हो, इसको decimals में भी लिख सकते हो. All right, ये clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then it says the blade completes 15 revolutions per minute. Okay, so 15 revolutions per minute complete करता है. Calculate the speed of P giving our answer in kilometers per hour. अच्छा, पहले भी यूनिट को अभी इग्नोर करते हैं. In fact, let's actually use that because ये मिनट के अंदर है और हमारे पास ये मीटर्स के अंदर है. हम इसको अलग अलग पहले इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं इकट्ठा भी कर सकते हैं. But let's find the total distance traveled first. तो distance traveled पहले कितना होएगा. अच्छा, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, 60 पाई. 15 रेवोल्यूशंस में कितना होएगा, 15 Multiply by 60. into 60 pi, right? So let's evaluate that. 15 into 60 pi, that's going to be 2827.4 meters. इसको हम किलोमीटर से यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं. What do we get? We get 2.827 kilometers. ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, वो किलोमीटर्स में आ गया. अच्छा, but by the time now पर मिनट इतना हो रहा है, राइट? एक मिनट में आपकी 15 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही हैं. टाइम इज 1 मिनट. 1 मिनट आवर्स में कन्वर्ट करना है, that will be 1/60 hours. ठीक है, 60 से डिवाइड कर दिया, उसको डेसिमल्स में अगर लिखना चाहो that will be 0.016667 hours. ठीक है, now you just need to divide these numbers. Speed हमारे पास क्या आ जाएगी, speed will be 2.827 divided by 0.016667. ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास किलोमीटर पर आवर में वो स्पीड आ जाएगी. ठीक है, so this turns out to be 169.6 kilometers per hour for me. Okay, clear है? Yes, sir. Let's move on. A point Q lies on the straight line between P and the center of the blades. So there's a point Q here that lies on a straight line between P, अच्छा P और सेंटर ऑफ द ब्लेड के दरम्यान में. अच्छा ठीक है, अब ये पॉइंट Q जो है ना ये दरम्यान में कहीं पे है. So अगर मैं साइड पे यहाँ पे बनाऊं, so this is, let's say these are the 3 blades. अगर P ऊपर था और ये सेंटर है तो Q is somewhere in the middle, right? दरम्यान में कहीं पे, let's say somewhere here. अब वो हमें नहीं पता exactly किस जगह पर है, but it's somewhere between C and P. ठीक है, ये पॉइंट Q है. It's not theta, this is Q by the way. Now, Q travels 90 meters as the blade completes 1 revolution. Now, again, you need some imagination to be able to understand this properly. The point Q lies on a straight line between P and center of the blade. जो आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे इस तरह के Q lie कर रहा है. Q travels 90 meters as the blade completes 1 revolution. अच्छा, क्या मतलब? Q जब ये ब्लेड अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, Q किस तरह ट्रैवल कर रहा होगा? Q भी इसी तरह ट्रैवल करेगा सर्कल के अंदर, राइट? दिस इज हाउ Q इज गोइंग टू ट्रैवल. लेकिन इसका सर्कल जो है वो P के सर्कल से छोटा होगा. ठीक है, बिकॉज़ इसका सेंटर से डिस्टेंस कम है, तो P का सर्कल बड़ा था, Q का सर्कल छोटा होगा. ठीक है, दरम्यान में आपका ये छोटा सर्कल है. तो ये जो पूरी 1 रेवोल्यूशन है, हाउ मच इज दैट? दिस 1 रेवोल्यूशन इज बेसिकली 90 meters in distance. ठीक है,
जो 1 revolution हमारे पास है, this is 90 meters. क्या मतलब जो Q एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, उसका जो सर्कमफेरेंस है that is equal to 90. तो रेडियस क्या होगा फिर? C से Q तक डिस्टेंस बेसिकली क्या होएगा? वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 90 divided by 2 pi. That gives us 14.32 meters. This is the radius. So that's this distance CQ. यहाँ से हमें पता चला CQ distance जो है that is 14.32 meters. Okay? तो PQ क्या हो जाएगा फिर? Total distance कितना था? P से लेकर C तक सेंटर से P का डिस्टेंस कितना था? 30. 30 में से हम ये 14.32 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.68 meters. So that is the distance between P and Q. Does this make sense? ये clear है सबको? Yes, जी sir. सर। Okay, now these questions were, definitely tricky. So it's okay if you found these difficult the first time, but I hope it makes sense now. But they are tricky, so don't be afraid that आपको बहुत मुश्किल लगे. लेकिन they were difficult. They were in fact difficult. इसकी वजह से इसका I guess इस paper का threshold भी थोड़ा सा नीचे आया होगा. But yeah, let's look at the next one now. अच्छा, triangles A, B, C and D are drawn on the centimeter square grid. ये आपको ये triangles नजर आ रहे हैं A, B, C, D. The perimeter of triangle A is A plus square root of B centimeters, where A and B are integers. Find A and B. Okay. अच्छा, so perimeter की बात हो रही है ना? तो हम A और B की values में क्या निकालनी है? A का perimeter क्या होएगा? आपका नजर आ रहा है A triangle. This is 1 unit. ठीक है, horizontal that's 2 units. तो ये hypotenuse कितना हो जाएगा उसका? आपकी hypotenuse square is equal to 1 square plus 2 square, which gives you square root of 5. तो perimeter कितना हुआ? It's 1 plus 2. Perimeter is equal to 1 plus 2 plus square root of 5, which is the same thing as saying 3 plus square root of 5. अगर उससे compare करें जो उसने हमें बताया हुआ था, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है this is A plus square root of B. So A is basically 3 and B is 5. B is not square root of 5, B is 5. Okay? ये clear है? अच्छा, so हमने perimeter find किया, उसको उससे compare कर लिया, that's it. Okay. Now triangle A is mapped onto triangle B by the translation T. Write down the column vector that represents T. Okay. So A से B पे जाना है, right? आपको नजर आ रहा है कि वही orientation है, वही size है, बस shift हो गई है figure. अब कोई भी corresponding point choose कर लो. So let's say मैं ये वाला point choose करता हूँ, उधर भी ये वाला point. मुझे क्या करना पड़ रहा है इस point से उधर जाने के लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 units left. 6 units left जाना पड़ रहा है. Let's say this is -6. अच्छा, ऊपर कितना जाना पड़ रहा है? 1, 2, 3 units up. So that's +3. -6, 3. That is going to be my translation vector. Okay. अच्छा. Then it says describe fully the single transformation. अच्छा, एक single transformation है that maps B onto C. अच्छा, B से आपने C पे जाना है. This B has to go to C. अच्छा, again, now what different transformations we know about? We know translation, we know reflection, we know rotation, we know enlargement. अच्छा, translation तो नहीं है ये, क्यों? क्योंकि figure बना के देख। अच्छा, so translation तो नहीं है क्योंकि ये figure अपनी direction change कर रही है, right? तो translation तो नहीं है. अच्छा, enlargement भी नहीं है, size change नहीं हो रहा. तो the only thing you have to worry about is कि क्या ये reflection है या ये rotation है? How do we know which one of these is this? ठीक है? So one idea is what Alicia suggested, आप line से connect कर दें इसको आपस में, right? So that's one idea. उससे आप अगर तो lines parallel हैं सारी, तो वो आपकी reflection होगी. अगर वो lines intersect कर जाती हैं, तो that means they are that's a rotation. ठीक है? The other idea is आप corresponding points mark कर लो. अगर ये point A है यहाँ पे, और let's A, B, C तो use हुआ है, let's say this is X.
90 डिग्रीज वाला पॉइंट, यहाँ पे ये x बार हो जाएगा, x डैश हो गया। इसी तरह से इसकी छोटी साइड वाला पॉइंट दैट्स y, यहाँ पे दिस इज y डैश, तो तीसरा पॉइंट z, दिस इज z डैश। आपने देख लेना है उनका ऑर्डर क्या है। एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड्स पे ना, एंटी क्लॉकवाइज चल आप देख लें। एंटी क्लॉकवाइज इसमें आप जाते हो यू गेट x z y, इसमें एंटी क्लॉकवाइज आते हो क्या मिलता है x y z। ओरिएंटेशन आपकी चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्शन है। ओरिएंटेशन चेंज हो रही हो, इसका ऑर्डर चेंज हो जाए तो वो रिफ्लेक्शन होती है। रोटेशन में ऑर्डर चेंज नहीं होता। ऑर्डर चेंज का मतलब होता है आपकी फिगर फ्लिप कर गई, राइट, फ्लिप करती है रिफ्लेक्शन के अंदर। तो अगर आपका ये ऑर्डर चेंज हो रहा है दैट मींस इट्स अ रिफ्लेक्शन, अगर ये ऑर्डर नहीं चेंज हो रहा दैट्स अ रोटेशन। डज दिस पॉइंट मेक सेंस? यस सर। दोनों में एंटी क्लॉकवाइज देख लें या दोनों में क्लॉकवाइज देख लें, एक स्टैंडर्ड कर लें, उसमें देखिए ऑर्डर क्या सेम रह रहा है या चेंज हो रहा है, एंड दैट विल यू नो मेक इट क्लियर टू यू। अगर या क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है इट्स रिफ्लेक्शन, तो अब एक मार्क आपको मिल जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिखने का। अब रिफ्लेक्शन को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बतानी होती है, ठीक है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे आती है, मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के, x और x का मिड पॉइंट फाइंड कर लें, स्केल रखें, उसका मिड पॉइंट निकाल लें, या फिर आप उसको कैलकुलेशन से निकाल लें, हाउएवर यू प्रेफर। उसका मिड पॉइंट क्या आता है, सॉरी 3y is equal to x वाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन जो है y is equal to x। अच्छा, सो लेट्स फिगर दिस आउट। हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे x और x बार का मिड पॉइंट क्या आता है, x और x बार का मिड पॉइंट 4 and -3, that's going to be here 0.5 and ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा x और x बार का। जब y और y बार का मिड पॉइंट क्या आता है, दैट्स द ओरिजिन। z और z बार का मिड पॉइंट ये आएगा ये पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट फाइंड कर लिए कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के, आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी लाइन, ठीक है। कुछ कॉमन लाइन का बताया तो पता होना चाहिए आपको, y equals x line, y equals minus x line, so this is the line y equals x because it's passing through all of these coordinates। यहाँ पे देखें 4 के ऊपर 4 है, राइट, 0 के ऊपर 0 है, -2 के ऊपर -2 है, तो सारे पॉइंट्स इक्वल है, so this is the line that is y equals x, so you say it's a reflection with y equals x as the line of reflection, ठीक है। रिफ्लेक्शन में ये चीज बतानी होती है आपने कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, अगर आपने वो याद किया मैं कि अच्छा वो कौन से कोऑर्डिनेट्स किस तरह से चेंज होते हैं, तो दैट्स आल्सो फाइन, दैट्स आल्सो फाइन, लेकिन बस वो रट्टा है और बस वो आपका अगर आपका अच्छा रट्टा है तो फिर तो सही है। आई फाइंड इट हार्ड टू मेमोराइज थिंग्स, तो बट इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। अगर आपको याद रहता है उस तरह से, आपको पता है कि कंफर्म के मिस्टेक नहीं होगी, दैट्स ओके। अच्छा, next says describe fully the single transformation that maps B onto D, B से D पे जाना है। अच्छा, B से D पे जाना है, तो फिर पता चल गया आपको एनलार्जमेंट है, साइज सिर्फ एनलार्जमेंट में चेंज होता है, ठीक है। एक मार्क आपका आराम से मिल गया एनलार्जमेंट लिखने पे, राइट, सिर्फ एनलार्जमेंट लिखने का एक मार्क। अच्छा, अब एनलार्जमेंट में दो चीजें बतानी होती हैं आपको, एक होता है स्केल फैक्टर और दूसरा होता है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट बताना है आपने और आपने बताना है स्केल फैक्टर। अच्छा, स्केल फैक्टर देखें, फिगर क्या सेम डायरेक्शन के अंदर है, फ्लिप हो गई है, बी से डी पे जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, उसकी उल्टी हो गई है सर। ये वो नेगेटिव स्केल फैक्टर होगा ना इसका? यस, तो इसका स्केल फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फिगर आपकी उल्टी हो गई है, सेंटर जो है कहीं पे दरमियान में होगा। इसका आसान तरीका ये होता है, इसका आसान तरीका ये होता है,
पहले आप सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फाइंड कर लें इसका, ठीक है, दैट विल बी इजियर। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट पहले फाइंड कर, किस तरह फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट? कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, बस कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, दैट्स इट। तो यानी कि 90 डिग्रीज वाला पॉइंट 90 डिग्रीज के साथ, सो ये 90 वाला पॉइंट है यहाँ पे, उधर भी 90 वाले के साथ ज्वाइन कर दिया इसके साथ, ठीक है। इसी तरह से जो छोटा वाला छोटी लेंथ है उसके बाद दूसरे छोटी लेंथ वाले पॉइंट से डिवाइड कर दिया, सो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो बस टू लाइंस आर इनफ जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हूं, दैट्स योर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। बस आप कंफर्म करने के लिए तीसरा भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी यहीं से पास करना चाहिए। सो व्हेन वी ड्रॉ दिस, दैट आल्सो passes through the same point, ठीक है। So that is your center of enlargement, which is -4 and 2. अच्छा, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हमारे पास आ गया -4 and 2। अब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट अगर दोनों फिगर्स के दरमियान में आ रहा हो ना, उससे भी आपको पता चल जाता है कि आपकी स्केल फैक्टर जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। या फिगर उल्टी हो रही है, उससे भी पता चलता है नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव समथिंग, अब नेगेटिव क्या, बी से डी पे जा रहे हैं, आप कोई भी कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ देख लें, कोई भी लेंथ, राइट, कोई भी कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ। जो छोटी वाली लेंथ है पहले 1 थी, बाद में क्या हो गई है, 2 हो गई है। जो बड़ी वाली लेंथ थी पहले 2 थी, बाद में क्या हो गया, 4 हो गई है। Yes, so double हो रहे हैं। So -2 is the scale factor. So scale factor is -2. That earns you 3 marks. Enlargement लिखने का 1 mark, scale factor -2 लिखने का 1 mark और center of enlargement लिखने का 1 mark. Okay, write down the matrix that represents the transformation that maps D onto A. अच्छा, D से A पे जाना है आपने, D से A पे जाना है। अब ये आपकी वो टेस्ट है, आपको मैट्रिक्स जो है वो याद है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन सा मैट्रिक्स है। अब आप क्या कर सकते हो, आप पहले तो ये फिगर आउट कर लो कि ये है कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जिनके मैट्रिसेस आपको आने चाहिए, रिमेंबर, आपको सिर्फ वो कॉमन वाले रिफ्लेक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल आपको 4 मैट्रिसेस आने चाहिए सिर्फ। रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अंदर, x एक्सिस के अंदर, y इक्वल्स x के अंदर, y इक्वल्स -x के अंदर, ठीक है। आप वो उनमें से चेक कर लें क्या वो तो नहीं है कोई लिखा है। ये तो D से A पे जाने के लिए तो एनलार्जमेंट D है, वो तो पता चल रहा है एनलार्जमेंट ही है D से A पे जाने के लिए। खैर, आई डोंट नीड टू गेट इनटू दैट, सो बाकी तो स्किप करते हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एनलार्जमेंट। सो okay, sorry, I think I got disconnected. Can you guys hear me now? Yes sir, अब आ रही है। अच्छा, I was just telling, जो आपको जो आपको एनलार्जमेंट के केस में मैट्रिक्स जो आपको याद होना चाहिए ना, दैट इज ओनली फॉर द केस जब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0 होगा, उसके अलावा कोई नहीं आपको याद होना जरूरी है। अच्छा, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि डी ऑन टू ए की बात कर रहे हैं। एक तो आपको पता है इट्स एन एनलार्जमेंट, डी से ए पे जा रहे हैं, राइट, फिगर का साइज चेंज हो रहा है, दिस इज एन एनलार्जमेंट, ये एनलार्जमेंट है, ठीक है। अच्छा, एनलार्जमेंट का मैट्रिक्स क्या होता है, आप हम याद करने का तरीका भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। K00K है ना, याद है सबको? जैसे वो मैट्रिक्स ऑफ स्केल फैक्टर का एनलार्जमेंट, होता है ये। Yes sir. राइट। के कांस्टेंट टाइप होता है, जो वो स्केलर फैक्टर होता है, वहाँ में वो आएगा ना -2 0 0 -2। या सो K इज द स्केल फैक्टर हियर, ठीक है। K स्केल फैक्टर है। स्केल फैक्टर आप देख लोगे D से A पे जाने के लिए एक तो नेगेटिव होगा, बिकॉज ये आपका दरमियान में ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। आप देख लें कि D से A पे जा रहे हो, ये 4 थी लेंथ, 4 लेंथ वहां पे जाके 2 हो गई है, तो हाफ हो रही है, राइट। अब लेंथ हाफ हो रही है, मतलब स्केल फैक्टर 1/2 होना चाहिए। और क्योंकि फ्लिप भी कर रही है फिगर और ये सेंटर के दोनों साइड्स पे है, एक साइड पे, दूसरी फिगर दूसरी साइड के ऊपर है, तो यहाँ पे नेगेटिव भी आना चाहिए। सो K की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, -1/2। सो योर मैट्रिक्स विल बी -1/2 0 -1/2 here and 0 here. That is the matrix that you have. Okay, clear है?
Yes, sir. अच्छा, the transformation V is a reflection in the line y equals 0. अच्छा, वो भी आपको बता रहा है कि ये एक transformation है, that's V. It's a reflection in the line y equals 0. There's a transformation W that is a rotation 90 degrees clockwise about 0, 0. The single transformation X is equivalent to the transformation V followed by the transformation W. The point GH is mapped onto the point P by the transformation X. Find the coordinates of P. अच्छा, इस तरह की problem जो है ना, it's easy, it's easier to just think of a point. कोई भी आप point ले लें. ये GH है ना, आप ऐसा point लें जो इनमें दोनों वैल्यूज के डिफरेंट हो, जी की और वैल्यू, एच की और वैल्यू, अगर अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं. सो 1 1 लेने का फायदा नहीं है, जी दोनों सेम वैल्यू नहीं ले. आप एक ऐसा पॉइंट ले लें कोई यहाँ पे ऑन द फिगर. लेट्स से मैं लेता हूँ पॉइंट दैट्स 1 2, राइट. लेट्स टेक दिस पॉइंट. ठीक है, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, जी की वैल्यू में लेट्स से सपोज करता हूँ 1 एच 2, लेट्स सपोज दैट. अच्छा, अब उस पे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन V लगानी है. तो V ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल 0. y इक्वल 0 कौन सी लाइन होती है, इट्स द x एक्सिस. ये लाइन है y इक्वल 0. इसके अंदर रिफ्लेक्ट कर दें उस पॉइंट को, कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा नीचे. ये आ गया पॉइंट. अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है, फॉलोड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन W. W क्या है, W इज रोटेशन 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज अबाउट 0 0. अच्छा, क्लॉकवाइज करना है, इसको रोटेट अबाउट द ओरिजिन. क्या करेंगे, अब देख लें राइट पे कितना है, ये 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट डाउन हो जाएगा. और नीचे कितना है, ये 2 यूनिट्स, तो ये 2 यूनिट्स लेफ्ट चला जाएगा. क्लॉकवाइज रोटेट करके ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा. ठीक है, तो आपने का अगर ये पॉइंट होता दैट वाज 1 एंड 2, तो वो आपका ट्रांसफॉर्म होके कहां पे चला गया, -2 -1 के ऊपर. वो चला गया -2 -1 के ऊपर. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, अगर ये G था, उधर देखिए 1 कहां चला गया, 1 की जगह क्या आ गया यहाँ पे, इधर -1, so it becomes -G here. जो H था फिर 2 लिखा हुआ था, 2 कहां चला गया, वो इस x कोऑर्डिनेट बन गया और नेगेटिव हो गया, so that's -H here. ठीक है, does this make sense? सर ये लास्ट जरा एक दफा दोबारा समझिएगा. आपको ये समझ आ गया, मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, एक मैंने पॉइंट अज्यूम जी कर सर, ये लिया. तो ठीक है, ये तो हो गया. अच्छा, ये पॉइंट फाइनल पॉइंट नहीं पता चल गया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास फाइनल कि जी नहीं. सर. सर मुझे बस वहां से बताएं जहाँ से आपने उसको सेंटर के साथ साथ से मेयर किए, इस तरफ आए हैं जो रोटेशन किया आपने, वो वाला जरा ओके, दोबारा ठीक है, बताएं. ओके. अच्छा, सो मैंने आस्किंग अबाउट द सेम थिंग, रोटेट कैसे करना है. सो रोटेशन करने का ना एक आसान तरीका होता है. आप इसको इस तरह देखें. सो थिंक ऑफ दिस, थिंक ऑफ दिस सर्कल. इस सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट्स आप अज्यूम कर लें. लेट्स से दिस पॉइंट इज A, this is B, this is C, D. अच्छा, अब लेट्स से मैंने क्लॉकवाइज रोटेट करना है इस चीज को. ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है. अब इसको इस तरह कैसे, दिस इज अप, दिस इज राइट. या इट्स बेटर टू राइट दैट वे. सो मैं कहता हूं अप, राइट, डाउन एंड लेफ्ट. दिस इज अप, दिस इज राइट, दिस इज डाउन, दिस इज लेफ्ट. अब मैं कहता हूं 90 डिग्रीज मुझे क्लॉकवाइज रोटेट करना है. 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करना. 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करना क्या मतलब है, जो अप होगा, जो ऊपर चीज होगी, वो कहां चले जाएगी, मुझे इस पॉइंट के अराउंड करना है, जो सेंटर है मेरा, दिस इज द सेंटर, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन. इसको रोटेट करूंगा मैं 90 डिग्रीज, अप कहां चला जाएगा, अप गोज टू, और
अप जो है वो राइट हो जाएगा, है ना, 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करने पे राइट जी कहाँ सर। चला जाएगा, राइट विल गो टू डाउन, राइट गया वो डाउन चला जाएगा, डाउन कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट कहाँ चला जाएगा, अप चला जाएगा। इज दिस क्लियर, इज दिस मैपिंग क्लियर? यस सर, ठीक ये सर। हमने ऐसे में हमने ये पहले भी की थी। फिर हो ये जाएगा 2 क्लॉकवाइज, राइट ये 1 क्लॉकवाइज डाउन के हो लिए, जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या था, इधर ये हमारा पॉइंट है, ये क्या है, दिस पॉइंट इज 1 राइट एंड 2 डाउन। राइट कहाँ चला गया, राइट जो है वो डाउन चला गया, so it should become after rotation it becomes 1 down 1 डाउन और ये डाउन कहाँ चला गया, डाउन लेफ्ट पे चला गया, एंड 2 राइट, लेफ्ट पे चला गया। 2 लेफ्ट, ठीक सर। 1 down 2 left, so center से 1 down and 2 left, so this actually makes your rotations very easy, 90 degrees 180 degrees ये इनकी बात अगर कर रहे हो, ठीक है, so that makes it quite easy। आप इस तरह से आपने अगर लेट से करना होता 180 degrees rotation, तो क्या होएगा, अप जो है that goes to down, ऑपोजिट चले जाएंगे, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, right goes to left, down goes to up, left goes to right and so on। इसी तरह से 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज भी आप कर सकते हैं, राइट, ये डायरेक्शन उल्टी हो जाएंगी, आर यू पे चला जाएगा, बी राइट पे चला जाएगा एंड सो ऑन, यू कैन यूज दैट टू रोटेट दीस थिंग्स हियर, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, तो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में, कोशिश करते हैं आई विल प्रोबब्ली डू इट ऑन मंडे आई गेस, आई विल ट्राई कि मैं मंडे को कर लो ये ट्रांसफॉर्मेशंस, ताकि ये एक मेजर टॉपिक हो जाए, और एक टॉपिक रह जाएगा दैट्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वो भी फ्रॉम नेक्स्ट वीक में करना है। ओके, इज दिस क्लियर? Minal, does that make sense? Alicia? यस सर, ऑल ओके। यस सर। All right. Oh, Minahil, let me actually, yeah, let me upload the recording already. I have another class to start in just a few minutes. So what I'll do is I'll actually share the recording. I was going to देख लें. If you still don't understand, I repeated it again. अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ आती फिर से, I will explain it tomorrow then. ठीक है? Tomorrow after class perhaps. That will सर be ये माइनस a जी bit और easier. माइनस एज है, सिर्फ हम इस तरह लिख सकते हैं, पहले जी लिखते हैं फिर माइनस एज लिखते हैं। ऐसे हैं सर? देखिए ये अगर पॉइंट था, पहले 1 2 था, ये 1 2 था, 1 2 कहाँ चला गया, -2 -1 हो गया, तो क्या मतलब अगर जी और एच होता जी वहां तो पे तो किस तरह बनेगा, तो वो जी फिर वो जी भी माइनस जी बन गया और एच माइनस एच बन गया, तो ऑर्डर मैटर करता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डर डज मैटर। ठीक सर। ओके, अच्छा, कब कहते हैं डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन एक्स, एक्स आपने डिस्क्राइब करनी है, अभी जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स ये डिस्क्राइब करनी है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपको फिगर में नजर आ रहा है क्या हो रहा है वहां पे, ये पॉइंट था पहले 1 2, वो कहाँ चला गया है, वो इधर आ गया नीचे, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग, सर ये रोटेशन हो गई रोटेशन हो रही है, किसके अबाउट हो रही है रोटेशन, विद सेंटर y इज इक्वल टू x के साथ से। y इक्वल्स x के साथ रोटेशन में एक लाइन पे क्या ताल्लुक है, नहीं सर, वो रिफ्लेक्शन सोचने लगा। सर रिफ्लेक्शन हो 90 रही डिग्री है, वाई को नेगेटिव। यस इट्स अ रिफ्लेक्शन राइट, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ चला गया, पॉइंट इधर चला गया दूसरी साइड पे, रोटेशन अगर आप करते हो वो तो एक एंगल भी अजीब सा एंगल बनेगा, सो जनरली इस तरह का नहीं, एंगल आपके कॉमन एंगल्स हो तो फिर इट मेक सेंस 90 180, अदरवाइज आप देखें रिफ्लेक्शन ये बन रही है आपकी इस लाइन के अंदर, दैट्स दिस लाइन हियर, इस लाइन में रिफ्लेक्शन बन रही है which is the line y equals -x,
So it's actually a reflection in the line. It's a reflection in the line y equals minus x. Minus x के अंदर reflection है. इसमें एक और तरीका भी होता है. अगर आपको matrices याद है ना, अगर आपको matrices याद है तो matrix से so this would have been a lot easier as well or maybe quicker इस केस के अंदर, क्योंकि उसने कहा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन v है. v ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट्स अ रिफ्लेक्शन इन y इन x एक्सिस. x एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स क्या होता है वाला? सो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स हमारे पास होता है, अगर हम उसको बनाएं 1 0 1 0 3 आएगा, सो दैट्स 1 0 0 1 चला जाएगा नीचे, सो दैट्स 0 minus 1. अच्छा, ये हमारे पास v का बन गया. w क्या क्या होएगा? रोटेशन 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज हो जाएगा 0 minus 1 and 1 0. ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस आ गए v और w. अब उसने क्या कहा है? सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसफॉर्मेशन v फॉलोड बाय w. जो पहले होती है वो पॉइंट के साथ आ रही होती है. जो पहले होती है ट्रांसफॉर्मेशन वो लिखते बाद में है, राइट? बिकॉज ये w v ट्रांसफॉर्मेशन अगर होगी किसी पॉइंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, लेट्स से हमने ए पॉइंट के ऊपर अप्लाई किया, v पहले लगेगी इसके ऊपर, उसके बाद w होगी. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन पहले अप्लाई होती है वो लिखते बाद में है. ओके, so this transformation would actually be wv. Your x transformation is equal to w times v. आप क्या कर सकते हो? आप wv को मल्टीप्लाई करो, so that's 0 1 minus 1 0 multiplied by 1 0 0 minus 1. इनका प्रोडक्ट देखें क्या आता है? That's 0 here and then 0 and minus 1 here, minus 1 here and 0 here. ये आप देख लें किसका मैट्रिक्स है. ये मैट्रिक्स किस चीज का मैट्रिक्स है? Again, you can draw that. This is 1 0, this is 0 1. तो 1 0 कहाँ जा रहा है? 0 minus 1 के ऊपर. So this is going there. 0 1 कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है sorry. So 1 0 is going here. Sorry, it's going here. और जो ऊपर वाला पॉइंट था वो जा रहा है इधर, है ना? यही हो रहा है ना? This was 1, this was 0 1 and this was 1. ये पॉइंट जा रहा है नीचे 0 minus 1 के ऊपर, और ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है? minus 1 0 के ऊपर. वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस तरह लेकर जाती है पॉइंट्स को? That is this reflection at the line y equals minus x. Now of course I'm assuming कि आप लोगों ने matrices सही तरह से इस तरह से proper तरीके से जो है वो सीखे हुए हैं. We will do them on Monday inshallah then. If you are confused about this, but this is going to be reflection in the line y equals minus x here, whichever way you do. Is this okay? Any Yes, questions sir. on this? Any problems? No. No? Yes, sir. Okay, let's do the last one very quickly then. अच्छा, इसमें ना इन पेपर्स में चॉइस होती थी, तो उसमें जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है हर पेपर के अंदर. That's why it takes more time as well. So just give me 1 minute. सर बस समझिए फिर हमने भी चॉइस ले ली. नहीं, इसको कंप्लीट करके और फिर हम इंशाल्लाह I'm just changing the time or updating the time of my next session. Update कर दूँ उधर. Okay. आप लोगों की क्लासेस मैंने इनिशियली स्केड्यूल की हुई थी 45 to 1 hour, 45 minutes to 1 hour. बहुत ही लंबी क्लासेस हमारी चलेगी. बाकी क्लासेस अच्छा, so let's do that. Solid 1 is a cylinder with a small cylinder removed from its center. अच्छा, so एक बड़ा सिलेंडर है और उसमें से एक छोटा सिलेंडर रिमूव कर दिया है अंदर वाला, so हमारे पास ये सॉलिड बन गया. Okay, now the height of each cylinder is 20 centimeters and the radius of the small cylinder is r centimeters. The radius of the large cylinder is 3.5 centimeters greater than the radius of the small cylinder. Okay, fine. So radius of the large cylinder कितना होगा फिर? That will be r plus 3.5. अच्छा, the volume of solid 1 is
3000 centimeter cube. इस पूरे solid का जो volume है, that is 3000 centimeter cube. Using this information, we have to calculate R. Okay. Volume क्या है? That is equal to 3000. अच्छा. Volume कैसे निकलेगा? It's volume of the big cylinder minus the volume of the smaller cylinder, right? So volume of the large cylinder minus the volume of the small cylinder, right? Because उसमें छोटा cylinder निकाल के side वाला सिर्फ solid है आपके पास. That is equal to 3000. ठीक है? Volume of large cylinder pi r square h फॉर्मूला होता है cylinder के volume का. pi r square radius क्या है large cylinder का? That's r plus 3.5. इसका whole square multiplied by height. Height is 20. So that's the large cylinder's volume. Minus कर दिया pi into radius of the smaller circle. Smaller cylinder, that is r. That's r square into 20. That's equal to 3000. ठीक है? यहाँ से क्या आएगा? आप इसको एक्सपैंड कर लो. ये 20 तो कॉमन लेके दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया हमने, राइट? आप समझो पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दिया. We have 3000 divided by 20 on the other side. यहाँ पे हमारे पास आ गया pi into r square. अच्छा pi भी जाके डिवाइड कर देते हैं वैसे, क्या pi हमें चाहिए उसके अंदर? अच्छा नहीं, so yeah, so pi भी जाके डिवाइड कर देते हैं. So 20 pi हमने कॉमन लेके ना यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया. ठीक है? I hope that's clear. So pi हमारा वहां से खत्म हो गया. हमने 20 pi कॉमन ले लिया था, like this. 20 pi कॉमन लिया, वो फिर जाके दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया, right? So that's why I'm not showing that on the left side here. What are we left with? कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा? We have r square plus 2 into r into 3.5. That's 7r plus 3.5 का square. Yeah, that's the expansion of this. Minus 20, that's equal to this. ठीक है? ये हो गया. Now we have to find the value of r from here. हम देखते हैं क्या आती है. We have r square plus 7r plus 3.5 का square minus 20. इसको हम evaluate कर लेते हैं. क्या आता है? 3.5 square minus 20. This is minus 7.75. अच्छा, अब दूसरी साइड पे ये है 3000 over 20 pi. ये क्या आता है? 3000 divided by 20 pi. That is 47.74. उसको भी जाके आपने डिवाइड माइनस कर दिया. 47.75 in fact. That's equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास. इसको आपने सॉल्व कर लेना है. ठीक है? You just solve this quadratic equation. You got r square plus 7r minus 40 तकरीबन आ गया. Minus 40 equals 0. This is the quadratic equation that we have to solve. ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं. We cannot factorize, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई -7 plus minus 7 का स्क्वायर minus 4 into 1 into minus 40 divided by 2 into 1. यहाँ से r की वैल्यूज आएंगी. You might be getting two values from here. So I'm getting -7. इसको अंदर वाला evaluate कर लेते हैं. 7 का स्क्वायर minus 4 into 40, so that's plus 160. That turns out to be 14.456. So -7 plus minus 14.456 divided by 2. So r turns out to be equal to either 3.73 or it turns out to be something negative. Right, so that's not possible, of course. Negative तो नहीं हो सकता. -7 minus 14.456 divided by 2, that is minus 10.72. This is not possible because radius negative नहीं हो सकता. The value of r therefore is 3.73. Is this okay? Have we done any mistake anywhere, or is this okay? So मैं just check कर लूँ इसको. मुझे थोड़ा सा लग रहा है. So yeah. Okay, so we have done a major blunder here. Yeah. 5 पीछे आ रहा है 5 point.
0.06 या बिकॉज आप सिर्फ मुझे देख रहे हैं, आप खुद से सॉल्व नहीं कर रहे साथ साथ। सो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे 20 पाई से डिवाइड किया था, यहाँ पे 20 तो नहीं बचेगा ना, 20 पाई लेके गए हैं वहाँ पे, वी आर लेफ्ट विद आर स्क्वायर हियर, यहाँ पे आर स्क्वायर बचता है ना। यस सर। आप लोग क्या कर रहे हैं तब से, सो रहे हैं? बस देख रहे हैं, अरे देख रहे 7r इज इक्वल टू, अच्छा 3000 ओवर 20 पाई, वहां पे क्या बनता है 3000 डिवाइडेड बाय 20 पाई। मैथ इस तरह नहीं कर सकते देख के, बस देख पेपर में भी देख रहे होंगे फिर आप पेपर को। अब्दुल्ला उठ जा यार। 47.75 फिर वो मैं क्वेश्चन खुद कर रही हूँ। 3.5 square that's 12.25। यहाँ से हमारे पास r आएगा कुछ 47.75 minus this which is 35.5। so वो quadratic नहीं बनती, हमारे पास ये आ जाता है 5.07 यहाँ से। so this is 5.07 centimeters or whatever that unit is। ठीक है, so again the concept was the same, मैं यहाँ पे एक mistake कर दी silly, so we've corrected that, this is what we get। अच्छा, now solid 2 is a cone with volume of 3000 centimeter cube। अच्छा ये cone आ गया हमारे पास, the perpendicular height of the cone is twice its radius। अच्छा, so this height here of the cone is twice the radius। so अगर ये radius है तो जो height होगी that will be 2r, right? Which solid is taller and by how much? अच्छा ऊपर वाला solid जो था solid 1 that was 20 centimeters high, इसकी height हम calculate कर लेते हैं। इसकी height कैसे आएगी? We are given the volume। जो volume जो है that is 3000। cone का volume क्या होता है? cone का volume is 1/3 into pi r square h। बेस ठीक है, so 1/3 into pi into r square into h। h यहाँ पे क्या है हमारा, that's 2r। ठीक है, because height is twice the radius, 2 times the radius, that's 2r, that's equal to 3000। इसको हम simplify कर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2r cube, और let's just do r cube is equal to 3000 multiplied by 3 divided by 2 pi। okay, r cube आ जाएगा कुछ यहाँ से, क्या आएगा 3000 9000 divided by 2 pi, that is 1432.4। you take cube root of that, and that turns out to be 11.27। 2 पाई होगा कि सिंगल होगा पाई? 2 pi ना, ये भी d2 भी था ना यहाँ पे, यस सर। ये 2 भी है ना वहाँ पे उस साइड पे। ठीक सर, ठीक सर। अच्छा, तो r की वैल्यू आ गई 11.27, तो इसकी हाइट कितनी होगी फिर, जो हमारे पास 2r थी, so this was the height, right? this was the height, so height is solid की कितनी हो गई, this is 11.27 multiplied by 2 which is 22.54। इस solid की height आ गई 22.54, तो ये 22.54 tall है, जो ऊपर वाला है that is 20 centimeters, so this one is taller, solid 2 is taller, solid 2 is taller by how much, by 2.54 centimeters, right? 22.54 minus that 20, difference कितना हुआ 2.54, so that's what we write there। ठीक है, let's look at this one now। देखते हैं कि तीनों parts बिल्कुल ही अलग अलग हैं। The diagram shows a triangular prism, so it's a triangular prism because ये जो cross section है इसका, that is a triangle। This cross section is an equilateral triangle। Equilateral triangle का मतलब है this is 8, this is also 8, this is also 8। ठीक है, तीनों sides equal हैं, इसकी sides 8 हैं। Calculate the total surface area of the prism।
total surface area of the prism. Now, how many sides does this prism have? That's the first question. कितने sides in total? 5 surfaces हैं. 5, right? So, okay, yeah, surfaces. So we have 2 triangles, 2 equilateral triangles हैं, और 3 rectangles हैं, right? So we have 2 triangles, 2 ये वाले triangles हैं, 8, 8, 8, ठीक है? फिर 3 rectangles हैं. Rectangles कौन से हैं? एक ये ऊपर वाला rectangle नजर आ रहा है आपको, ठीक है? 8 और 24 इसके sides हैं. Let's draw that. Got this 8 and 24. अच्छा, और कौन सा रेक्टेंगल है जो पीछे बैक साइड पर है? उसकी भी क्या साइड्स हैं? उसकी भी वही साइड हैं, 24 and 8. तीनों सेम ही आपके पास ट्रायंगल रेक्टेंगल आ रहे हैं, 24 and 8. और नीचे वाला भी वही है ना? Also 24 and 8. इन सबको ऐड कर लेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया को मतलब ऐड कर लेंगे. यस, तो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? आप इसको सर वो उसका एंगल 60 होता है ना हर. Yes, angle 60 होता है, yeah, 60 degrees. We say 2 multiplied by half into 8 into 8 into sine of 60 degrees, and that will give you something. तो यहाँ से एक नंबर आएगा. What is that? 64 into sine of 60, which is 55.4. 55.4. ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स का आ गया हमारे पास. 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है? अभी तीनों रेक्टेंगल्स भी सेम ही है, उसको कह सकते हैं इट्स 3 multiplied by 8 into 24, and that will give us something. 3 into 8 into 24, that is 576. So total area कितना हो गया? 576 plus 55.4, and that turns out to be 631.4. ठीक है? 631.4 here. That is the total surface area of the prism. ठीक है, इसको एक और करने का भी तरीका होता है, आप लोगों ने शायद देखा है. सरफेस एरिया निकालने का प्रिज्म का क्या तरीका होता है? पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन. एक तो आप करें 2 into एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो तो हमने किया ऊपर, यहाँ पे हमने ऊपर किया, यहाँ पे पहला स्टेप. बाकी कोई भी शेप हो ना, ये रेक्टेंगल्स को इकट्ठे करने का तरीका ये होता है, प्लस आप कर दें पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर, जो भी क्रॉस सेक्शन है इसका पेरीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द प्रिज्म. हाइट की हाइट कह लें या उसको लेंथ कह लें, डिपेंडिंग ऑन हाउ द प्रिज्म इज प्लेस्ड. हाइट या लेंथ का मतलब क्या होता है? जो दोनों क्रॉस सेक्शंस हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, दैट्स 24 हियर, राइट? पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता? 8 plus 8 plus 8 into 24, and that will also give you 576 here. ऊपर से हमारे पास वही आ रहा होता 55.4. इन दोनों को ऐड करते you'll get 631.4 from there as well. ठीक है, यहाँ पे तो तीनों रेक्टेंगल सेम थे तो इसलिए इतना मसला नहीं हुआ. अगर ये डिफरेंट होते, लेट्स से यहाँ पे 8 के बजाय यहाँ पे लेट्स से 10 होता, नीचे 10 के बजाय 12 होता, फिर तीनों रेक्टेंगल्स का अलग अलग निकालना पड़ता. दिस वुड हैव बीन क्विकर. पेरीमीटर निकाल लेते क्रॉस सेक्शन का, उसको उस हाइट से मल्टीप्लाई कर देते या लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते, you will get the total, you'll get the surface area of the sides of that prism from there. All right, so I think that's enough for today. We will stop here. If you have any questions, we can discuss them tomorrow. We will be doing 2020 May-June 2020 paper 2 tomorrow, inshallah. Okay. Any questions on this, by the way? The last question, इस पे कोई issue तो नहीं है? नहीं सर, ये काफी इजी था. सर एक क्वेश्चन ना उससे हट के है कि मतलब सर वो जो क्वाड्रेंट
क्वाड्रेटिक कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसमें वो आता है शो दैट ये इक्वेशन दी होती है x² + 2 और ऐसे कोई इक्वेशन दी होती है। उसके बाद वो फिर कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें उसको। सिर्फ वो नहीं होता, वो जो शो दैट वाला होता है। ये प्रैक्टिस से होता है, ये इसमें बहुत हर एक में डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, आप बस उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आपने वो एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसको सिंपलीफाई करना है। ये जितनी ज्यादा डिफरेंट सिचुएशंस प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस आ सकते हैं, उसका कोई सेट मेथड नहीं है। आपने ये देखना होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जो इक्वेशन हम बिल्ड कर रहे हैं, इक्वेशन बिल्ड करते हुए आपने देखना है कि अच्छा क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एक आपको फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 3000, अब इसको आपने यूज करना है, किस चीज को 3000 से इक्वेट करना है। ऊपर भी देखें उसने आपको दिया हुआ है पिछले पार्ट में, या इट्स द सेम पार्ट, या सो वॉल्यूम आपने 3000 के इक्वल किया। इसी तरह एक ऊपर हमने पार्ट देखा था, यहाँ पे कहीं पे हमने इक्वेशन बनाई थी, so it was probably some other day। आपने देखना है कि आपको इक्वेशन किस तरह से फॉर्म किस तरह से करनी है। इक्वेशन के एक साइड पे क्या होगा, फिर दूसरी साइड पे आपने क्या फॉर्मुलेट करना है। लेकिन वो ये कि दिस इज मोर ऑफ एन आर्ट, जो आपको आता है थोड़ा प्रैक्टिस करके। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना उसके लिए बेहतर। आपको डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं उससे आप फेमिलियर होंगे, तो प्रैक्टिस इज द की देयर। अच्छा चलिए ठीक है, so we will stop here for today. I'll see you all again tomorrow inshallah. I have the next class starting in just 1 minute now, so I'll have to end it here. I'll see you tomorrow inshallah. Allah Hafiz.